بلا شبہ اللہ ہی ہے جو ہر حاجت پوری کرتا ہے اور دنیا میں وسیلہ پیدا کرتا ہے۔ مایوسی کفر ہے، جب تک روشنی کی ایک کرن بھی باقی ہے امید باقی ہے۔ پیر کے روز دا مارننگ شو میں ہم نے انوائٹ کیا تھا ڈاکٹر ہلال اختر مہپوری کو، اور پھر اس کے بعد کالز اور میسیجز کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ آپ دیکھنے والوں کے اصرار پر دا مارننگ شو کی ٹیم نے آج پھر انوائٹ کیا ہے ڈاکٹر ہلال اختر مہپوری کو، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں۔ السلام علیکم جی، گڈ مارننگ آپ سب کو۔ آج جمعے کا دن بہت بہت مبارک ہو، اور جیسے کہ آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ آج ہمارے پاس گیسٹ کون ہوں گے، تو جی ہاں، ڈاکٹر ہلال اختر مہپوری صاحب آج بھی ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہوں گے، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ان سے ملنا چاہ رہے ہیں، ان سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، ان کو کچھ مشکلات پیش آئی اور وہ کانٹیکٹ کرنا تھوڑا سا مشکل ہو گیا، تو ہم نے اس کو آپ کے لیے آسان بنا دیا۔ جو لوگ اس دن ہمارا شو نہیں دیکھ سکے، ہمیں کال نہیں کر سکے، آج میں چاہوں گی کہ وہ لوگ ہمیں کال کریں اور ڈاکٹر صاحب سے جو بھی بات کرنا چاہیں وہ ضرور ان سے بات کریں۔ اور بہت سارے جوڑے جو ہم سے کانٹیکٹ میں تھے، آج ہم نے ان کو یہاں پہ بلوایا ہے، وہ بھی ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے۔ اور کل میں اپنے جو ہمارے ڈائریکٹر ہیں بلاول، ان کا ولیمہ تھا، میں وہاں پہ بھی گئی، اور وہاں پہ بھی کافی لوگ مجھے ڈاکٹر صاحب کا پوچھ رہے تھے، تو میں نے ان سب کو کہا کہ انشاءاللہ آپ کل کا شو ضرور دیکھیے گا۔ تو آج کے شو میں ڈاکٹر صاحب کو میں بلواؤں گی، ان سے بات کروں گی۔ لیکن مزے کی بات بتاؤں، جہاں ہزاروں اور لاکھوں ہمیں میسیجز آئے کہ جی ڈاکٹر صاحب کا نمبر دے دیں، ڈاکٹر صاحب کا ایڈریس دے دیں، ہمیں ان سے ملنا ہے، اور 17 سال ہو گئے ہمارے یہاں کوئی اولاد نہیں ہے، 20 سال ہو گئے کوئی اولاد نہیں ہے، اور بہت سارا عرصہ، کچھ تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جی سال ہو گیا اولاد نہیں ہے، تو ان کو تو ڈاکٹر صاحب خود بھگا دیتے ہیں کہ یہ کیا ہے، ابھی تو سال ہوا ہے، سال میں اتنا پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن پھر بھی اگر آپ کی تسلی کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں تو ضرور ڈاکٹر صاحب سے بات کیجیے گا۔ ایک مزے کی بات وہ یہ کہ جہاں ہزاروں لاکھوں میسیجز آئے، وہاں پہ اس طرح کے بھی میسیجز مجھے آئے کہ آپ پاکستان میں بیٹھ کے لوگوں کی آبادی بڑھا رہی ہیں۔ اب میں چپ ہو گیا، میں ان میسیجز میں کیا جواب دوں؟ تو بھائی کسی کی خوشی ہے، اور خدا اولاد کی نعمت سے جس کو نوازے اور خدا ہی دینے والا ہے، تو ہم کیا کر سکتے، بس ہم چھوٹے موٹے وسیلے ڈھونڈتے، اور بچے تو اللہ کہتا ہے نا، بس بچے تو ایک ہوں دو ہوں، جس کے نصیب میں جتنے ہوں گے اتنے ہی ہوں گے۔ تو اگر کسی کو یہ خوشی نہیں ہے تو میں ان کے لیے تھوڑی سی آسانی پیدا کر رہی ہوں کہ شاید میری وجہ سے، میرے شو کی وجہ سے، یا ہماری کچھ چھوٹی سی محنت کی وجہ سے کسی کا بھلا ہو جائے۔ تو ڈاکٹر صاحب سے ملتے ہیں، میں ان کو ابھی بلواتی ہوں، یا ہم چھوٹا سا بریک لے لیں، بریک کے بعد بلوا لیں، ٹھیک ہے؟ اچھا جی ہاں، وہ میرے پاس جو 25 اگست کو جب شو میں آئے تھے منڈے کو، وہ میں آپ کو شو کا ایک چھوٹا سا کلپ دکھاتی ہوں، اس کے بعد ہم چلے جائیں گے وہیں سے بریک پہ، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور ڈاکٹر ہلال اختر مہپوری صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے۔ تو آپ بھی ہمارے ساتھ رہے گا، ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ آپ باقی کچھ اگر کوئی بیماریاں ہیں ان کا بھی علاج وہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا، دیکھتے رہے گا دی مارننگ شو۔ گڈ مارننگ۔ چاہ رہا ہوں آج شاید میری وجہ سے، اس شو کی وجہ سے، میری ٹیم کی ایک محنت کی وجہ سے آج وہ ایک صحیح شخص کے پاس جائیں گے، تو اسی میں ہی ہم لوگ خوش ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو آپ نے وعدہ کیا تھا اسے پورا کیا، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ شاہانہ کی وجہ سے آج بہت ساری بہنوں کو فائدہ پہنچنے والا ہے، آج بہت سارے بھائیوں کو فائدہ پہنچنے والا ہے۔ اگر اولاد نہیں ہوتا، عورت کا قصور ہے، دوسری شادی کر لو، دوسری سے نہیں ہوا تیسری شادی کر لو، چوتھی شادی کر لو، ایسا کیوں؟ کراچی کے کون کون سے ڈاکٹرز کو ہم نے نہیں اپروچ کیا، اور کہاں کہاں نہیں گئے، ہر جگہ ہم دونوں گئے، جا کے سر جوڑ کے بیٹھے، مگر ایک مسخرج ہوا۔ میری نند ہے، آپ اس سلسلے میں 5-6 سال ہو گئے ان کی شادی کو، نا بہت زیادہ پریشان ہے۔ کہ ہسبینڈ کی 3 سے 4 پرابلم، اس کی تھروٹ میں اریٹیشن ریگولر رہتی ہے، اس کو ایسیڈیٹی بہت زیادہ ہے، وہ اریٹیٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں، اس کی ٹانگوں میں کریمپ ہوتا ہے، ان سے کہیے ٹیسٹ کرا رہی ہے، ان کی رپورٹ صحیح نہیں ہے۔ میری شادی کو 3 سال ہو گئے، تو میری یہاں اولاد نہیں ہے، اور مجھے مہپوری صاحب سے ہی علاج کروانا ہے۔ کسی کو 17 سال بعد بچہ ہوا، کسی کو 22 سال بعد بچہ ہوا، جو کہ بہت بڑی بات ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ خدا نے ان کی ہاتھ میں شفا رکھی ہے۔ تو عمر کتنی ہے آپ کی؟ میری 34۔ 34۔ شادی کتنا عرصہ ہو گیا؟ 14 سال۔ کبھی کنسیو کیا آپ نے؟ کبھی نہیں کیا۔ آپ جاب کرتی ہیں؟ ہاں جاب کری ہے میں نے۔ ٹیچر تھی آپ؟ جی، اور ٹیوشن ویسے تو آج کل ٹیچر تھی؟ جی جی۔ یہ آپ کے ساتھ پرابلم ہے کہ آپ کے فالیکل اسمالر بنتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ فالیکل اسمالر ہے، اور فالیکل گرو کرنے کے لیے جو آپ کو ہارمونل ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے، وہ آرٹیفیشل آپ کی فالیکل گرو کرتے ہیں، لیکن اس میں کوئی آپ کے چانس اتنے نہیں ہوتے ہیں۔ ایک
दूसरी चीज़ है कि आपकी रिपोर्ट टेस्ट कराई थी आपने? कहाँ से कराई थी? आपका रैपिड लीनियर बहुत कम है इसके अंदर, लेफ्ट साइड में आपको दर्द रहता है यहाँ पे। जी होता है यहाँ पे। ठीक, आप तशरीफ ले आइए, अल्लाह पाक आपको नेक सौले सेहतमंद बेआए वाला अता फरमाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो डॉक्टर साहब बोलते हैं कि बंदिश है। बंदिश कुछ नहीं है। बंदिश कुछ नहीं है। बंदिश अच्छा, नहीं अब है, मुझे एक बात बंदिश- बताइए कि मेरे पास कोई शख्स आता है, 20 साल हो गए, 10 साल हो गए, 25 साल हो गए, किसी ने कहा कि असर है, किसी ने कहा बंदिश है, किसी ने कहा कि नंद ने किया, किसी ने कहा सास ने किया, किसी ने कहा बुखारी मोटी ने हो, किया, किसी ने कहा कि उम्र बड़ी है। उम्र बड़ी है। अब ये बताइए, तमाम के बावजूद वो पेशेंट मेरे पास आता है, अल्लाह पाक उसे कामयाब कर देता है, तो बताइए कौन सी बंदिश? 11 साल हो गए थे उसने कंसीव नहीं किया था, दोनों का इलाज हुआ, दोनों परफेक्ट थे, कोई प्रॉब्लम ना आसिफ में थी। सॉरी, इसके साथ उनके और मल्टीपल प्रॉब्लम्स कितने थे? उनको डायबिटीज था, उनको डायबिटीज था, ये कोई ये सब और मैं बता दूं कि इनकी वाइफ को जब इन्होंने इलाज किया, इलाज के बाद इन्होंने कहा अब तुम मेरी दवा से निकल मैं गई, बताता मेरी हूं ना, दुआओं में। मेरी भी आंखों में, डॉक्टर साहब की आंखों में भी आंसू आ गए और उन्होंने कहा कि जाओ, आज से तुम, मेरी दवा तुम्हारी खत्म हो गई है, अब आज से तुम मेरी दुआओं में हो। क्या बात है। औलाद अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों में से एक बड़ी नेमत है। जिस आंगन में बच्चे के हंसने की आवाजें गूंजती हों, वो घर खुशियों और मुसर्रतों का गहवारा लगता है। अपनी औलाद को देखकर माँ बाप का चेहरा खुशियों से खिलखिलाता नजर आता है, मगर दूसरी जानिब इंसान को अगर दुनिया की हर नेमत मिल जाए और खुदा न ख्वास्ता वो औलाद से महरूम हो, तो वक्त गुजरने के साथ साथ इंसान के अंदर की बेचैनी, बेसकूनी और उदासी चेहरे पर साफ दिखाई देने लगती है। घर के दरो दीवार पर खामोशी और अफसुर्दगी के गहरे साए, और ये खामोशी बार बार एहसास दिलाएगी कि कुछ कमी है, और वो कमी है औलाद की कमी। औलाद की कमी वाकई उनसे जाके पूछें जिनकी औलाद नहीं है। आबादी की बात नहीं है, 10 बच्चे जिनके हैं वो डॉक्टर साहब के पास कभी भी नहीं जाएंगे। डॉक्टर साहब के पास वो जाएंगे जिनकी कोई औलाद नहीं है। डॉक्टर साहब के पास वो जाएंगे जिनका अगर एक ही बच्चा है, बहुत अरसे से उनको ख्वाहिश है लेकिन बच्चा नहीं हो रहा, तो इस तरह के ही लोग जाएंगे। और यहाँ पे मैं शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर साहब की कि डॉक्टर साहब आज भी हमारे शो में आए। तो डॉक्टर हिलाल अख्तर माफूरी साहब के लिए ताजा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है। और आपको बहुत लोगों की दुआएं मिली हैं, और मैं चाहती हूँ कि ढेर सारी, एक लालच आ जाती है ना, ढेर सारी हमें दुआएं मिले, तो इसलिए आज हमने दोबारा ये शो डिजाइन किया ताकि लोगों के लिए आपसे कांटेक्ट करना और ज्यादा आसान हो जाए। तो जो लोग उस दिन कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, उनको हमारे नंबर्स या तो बिजी मिल रहे थे या आपके नंबर्स बिजी मिल रहे थे, आज वो दोबारा कॉल कर सकते हैं। बहुत सारी फैमिलीज, और मैं आपको बता दूं कि कुछ फैमिलीज आपसे मिलने के लिए हैदराबाद से भी आ रहे हैं और आज ही वहाँ से निकले, तो उनसे बात करेंगे। लेकिन आप बताएं कि कैसा रिस्पांस, लोगों की कितनी दुआएं, कितनी मोहब्बत मिली आपको? बात ये है कि आपने जिस तरह से आपने पेश किया और जिन लोगों के मुतालिक बताया, जिनको दिखाया आपने, उसको देखने के बाद से बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने फ़ोन किया। फ़ोन का ये आलम है कि मैं अगर फ़ोन सुनूं तो मेरे पास क्लिनिक पे जो 50, 60, 100 मरीज़ हैं, उन्हें उनको कैसे कौन देखेगा? आप उनका असरार है, मुझसे बात कर लें। अगर मैं बात करता हूँ तो पूछेंगे मुझे इतने साल हो गए हैं, मैंने ये इलाज कराया, मैंने वो इलाज कराया, तो उसमें मेरा वक्त का ज़या हो जाता है। राइट। तो मैंने अपना फ़ोन अपने असिस्टेंट को दे दिया, मेरा एक फ़ोन मैंने अपने बेटे को दे दिया, बेटा ये तुम उनको रिस्पॉन्स दो, बताओ। 1 घंटे में तकरीबन 6 से 7 हज़ार मेरे पास मिस कॉल आई, और सबसे ज़्यादा मेरे पास जो कॉल आई है वो यूके और पेशावर और पिंडी से आई है। अच्छा, फिर डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि हम उनके लिए आसानी कैसे पैदा करें? मैं समझती हूँ आपका क्लिनिक है, वहाँ पे इतना रश है कि हम माशाल्लाह हम आपको बता नहीं सकते, लेकिन जाहिर है अगर ये
उन लोगों को देखें या फिर कॉल्स रिसीव, लोग काफी नाराज हो रहे थे आपने कौन से नंबर्स दिए हैं वो तो बंद मिल रहे हैं, जाहिर है वो बिजी मिलेंगे, जाहिर है एक फोन आपको बंद मिलेंगे, बैटरी भी कब तक चलेगी। तो मुझे बताएं कि लोगों के लिए हम कैसे आसानी पैदा करें। मैंने उनसे कहा कि आप लोग जो बैरून मुल्क हैं जैसे यूके से हैं, ग्लासगो से हैं, मतलब कि दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं, यहाँ तक कि चाइना से लोगों को कॉल आई, चाइना से, इंडोनेशिया से, जकार्ता से, और बड़ी तादाद में। तो मैंने उनसे कहा है कि हमारे बेटे को मैंने कहा कि आप उनको बता दें, बल्कि उसने खुद एक रिश्ता सेट किया कि आप लोग रब्ता कीजिए, ईमेल कर दीजिए, अपना नंबर दे दीजिए, मैं खुद कॉल कराऊंगा। ठीक है। और थोड़ा सब्र कीजिए, 10-15 दिन 20 दिन तक आप सब्र कीजिए। इस 20 दिन के अंदर में यहाँ के जो देखिए हम काफी मैनेज कर लें। 2.5 से 3 करोड़ की आबादी हमारे कराची की है, 2.5 से 3 करोड़ एक मुल्क की आबादी है। अब इस आबादी के लोग जब हमारे पास आएंगे तो हम बैरून ममालिक और अपने बैरून शहर के लोगों को कैसे देखूंगा, उनको रिस्पांस कैसे दूंगा। और फिर ये कि एक बात और कहूँगा मैं अपने तमाम उनसे मरीजों से, आने वालों से, कि जब मेरे पास आए देखें अगर बहुत ज़्यादा रश है तो खुदा के लिए चले जाएं, किसी दिन और ट्राई कर लें। ठीक है। और ये नहीं कि मुझे दिखा लें, मुझे दिखाना है, आखिरी दिखा करते करते मैं तो एग्जॉस्ट हो जाऊँगा। एक पेशेंट, ये इनफर्टिलिटी का काम है, इसमें देखिए हम किसी डायग्नोसिस पे नहीं जाते, किसी फाइंडिंग को नहीं देख रहे, और वो इतनी मोटी किताब लेके आ जाती है कि हमने लेप्रो कराया, हमने हिस्टो कराया, हमने IUI कराई, हमने IV, जैसे कि सईदा रफीक ने आपके सामने बताया कि IVF फेलियर यहाँ केस होता है। तो अब वो तमाम चीज़ें लेके आते हैं कि इसे देखिए आप, चले अगर मैं देखूँ, उसको देख के बाद हम उन्हें क्या कहेंगे, दूसरे तो कुछ मिला नहीं उनको, मैं अपना दिमाग लगाता हूँ। जो अल्लाह ताला ने मुझे इल्म अता फरमाया, जो हमने हासिल किया, ये जितनी चीज़ें हैं ये मेरी ज़ाती अपनी अप्रोच है, इससे किसी चीज़ का ताल्लुक नहीं है। किसी चीज़ का कोई अगर कह दे कि अगर मिसाल के तौर पर उस सवाल हुई थी, बात उस दिन एक बच्ची ने पूछा था कोई सवाल, तो आपने बता दिया कि तुम टीचर हो, तो लोगों ने समझा कि पता नहीं आपके पास कोई और इल्म है, तो वो भी प्लीज क्लियर कर दे। ये के लिए ऐसा नहीं है, ये एक साइंटिफिक अप्रोच है। ठीक है। ये तो साइंटिफिक अप्रोच। एक आदमी को हेडेक होता है, सर का दर्द होता है, तो दर्द की कुछ रीजन तो होगी, वो रीजंस को हम बता देते हैं, ये आपकी सिर्फ नहीं है। छठी हिस्स कह सकते हैं, सिक्स्थ सेंस आपकी। ये अल्लाह की, मैं अल्लाह की का इनाम बताऊंगा, आप अगर कहें तो अल्लाह के इनाम होगा। तो ये है कि कम से कम मेरे पास लोग आए, मैं सबको दिखता हूँ, सबको देखूंगा। मेरे पास बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग आए जिनके पास कुछ ऐसे क्या कि बड़ी तादाद में थे, बेचारे आ रहे हैं, उनकी शक्ल सूरत से लग रही है उनके पास तो आने के पैसे नहीं है, मैं उनसे फीस क्या लूंगा, और उनको बोलते हैं जी ठीक चले जाए, नहीं ये बेईमानी नहीं कर सकता मैं, अल्लाह को जवाब देना है। जिस नीयत से आप काम कर रही है उस नीयत से मैं भी काम कर रहा हूँ, मैं अल्लाह को राजी करने के लिए कर रहा हूँ। हमारा शो अल्लाह पाक हमसे राजी हो जाए, अल्लाह को राजी करने के लिए ये शो किया अल्लाह को हम राजी करने के बैठे हैं। अल्लाह ताला पता नहीं किसकी दुआ लग जाएगी, मौत किसी वक्त भी आ सकती है, मौत पीछे भाग रही है, हम नहीं, हमें एहसास नहीं है, मौत हमारे पीछे पीछे, हम आगे आगे भाग रहे हैं और हम भाग कहाँ रहे हैं और पकड़ में आ जाएंगे, ये हम सबको पता है। ये मौत एक दिन हमें पकड़ लेगी, वो आज पकड़े या 10 साल बाद या कल। खौफ है आज का शो और मंडे का शो, ठीक है, मैं गलत बयानी नहीं करूंगी और बड़ा बोल नहीं बोलूंगी, ये 2 शोज हम नियतन कर रहे हैं, हमारी नियत साफ है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचे, इसलिए हम प्रोमो पहले चला रहे थे, टीजर चला रहे थे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग देख सके। और आज दोबारा इनको बुलाया है, बहुत रिक्वेस्ट की है, इनके लिए भी मुश्किल हो रहा था। तो डॉक्टर साहब मुझे ये बता दें कि लोग आप से कांटेक्ट कब करें, कब कॉल करें, कोई खास टाइम बता दें, 1-2 घंटे, या रात को 5 बजे कम से कम सुबह में ना करें। 3 बजे फोन, 2:30 बजे फोन, नहीं उनकी भी गलती नहीं है, अगर वो अमेरिका से फोन कर रहे हैं, मैं तो, हमारी तो रात है, उनकी दोपहर है। ठीक है, बस वही वाली बात है कि दिल की ख्वाहिश इतनी होती है औलाद की। जैसे मेरे एक भाई यहाँ पे, वो चाह रहे थे कि पहले वो बैठ जाए, ऐसा ना हो कि उनकी बारी ना आए। ऐसा ही था ना, कि उनको हो रहा था कि कहीं मेरी ना बारी आए तो पहले मैं बैठ जाऊं। तो ये ख्वाहिश है औलाद की और हम इसकी रिस्पेक्ट करते हैं, और इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि आप अपनी औलाद के साथ यहाँ पे हमारे सामने बैठेंगे। मेरे पास आधे घंटे से कोयटा से इंशाल्लाह ताला, कोयटा से कॉल पे होल्ड पे राबिया से बात करते हैं, और मेरे यहाँ पे गेस्ट बैठे हैं, उनसे बात करते हैं। और डॉक्टर साहब आपने सबको जवाब देना, बाकी हम बारी बारी साथ में बातें करते रहेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग राबिया। अस्सलाम वालेकुम आपी, मॉर्निंग पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक आपी, अल्लाह आपको बहुत सारी खुशियां दे, कामयाबी दे। आपने ये प्रोग्राम किया, आप यकीन करें, मैं कोयटा के डॉक्टर्स के पास, यहाँ के हॉस्पिटल्स में गई, डॉक्टर्स कहते हैं तुम्हारे यहाँ औलाद ही नहीं होगी। मैं किसी बच्चे को देखती हूँ तो मुझे रोना आता है कि मेरी औलाद नहीं है।
रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे या तो अपॉइंटमेंट देते, मैं कोयटा से कराची आ जाऊंगी, मेरा इलाज करते हैं। आपकी उम्र कितनी है? 30 साल। शादी कितना अर्सा हो गया? 2 साल। 2 साल में परेशान हो गई? यहाँ तो 22 साल के लोग परेशान नहीं हुए। मैं बिल्कुल घर में अकेली हूँ, ना मी अबू ना ससुराल में कोई है, शौहर होते नहीं है साथ। मैं अपने आप को बिल्कुल अकेला पागल हो क्यों, मैं देखती हूँ कि कोई भी नहीं है मेरे पास। मजे की बात है, जिस शहर से आप बात कर रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उसी शहर की बहुत बड़ी तादाद में गायनिकोलॉजिस्ट मेरे पास पेशेंट है। वो कराची आकर के एक हफ्ता इंतजार करके दिखा के गई हैं। और बड़ा दुख होता है कि ये काम, देखिए दवा और पैसों की कहानी नहीं है, ये अल्लाह का काम है। तो अल्लाह के काम के लिए आपको अल्लाह की बातें अगर बता दी जाएंगी तो आपको अल्लाह पाक इनाम अता फरमा देगा। तो आप पहली बात तो कि अपना डिप्रेशन से निकलिए, सोचना बंद कीजिए, अच्छा, और अगर अपने आप आप को डिप्रेशन रिलैक्स में रहते कीजिए। हो, मैंने सुना है कि अगर आप डिप्रेशन में हो तो भी आप कुछ नहीं हो कंसीव सकता, नहीं कर सकते। कुछ नहीं हो सकता। आप जितना रिलैक्स होंगे उतना आपके लिए मैं आसान है। आपसे जो बात कर रहा हूँ, ये तमाम वो कॉल करने वाली सुन लें, आप जो बैठे हैं वो सुन लें कि कम से कम अपना सोचना बंद कर दें, लाइफ को एंजॉय करें, अल्लाह के बताए हुए असूल पे चलने की कोशिश कीजिए। दुनिया के असूल पे चलेंगी तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप यूरोप को, उस ममालिक को फॉलो ना कीजिए जिसने हमको बर्बाद कर दिया। आप उसको फॉलो कीजिए जिस अल्लाह के बताए हुए असूल पे चलिए, नबी की हिदायत पे चलिए, तो अल्लाह ताला कभी मायूस नहीं करता अपने 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 लोगों को। तो आप मुझे ये बताएं कि ये आप आपसे अपने कराची हस्बैंड आए का हैं? टेस्ट करा लिया था? जी मैंने अपने हस्बैंड का टेस्ट करवाया था, उनका ठीक है। मेरे टेस्ट में मसले आ रहे हैं। क्या? कह रहे हैं आपका फॉलिक नहीं बन रहा, अंडे नहीं बन देखिए, आप सकते आपके। पहली बात सुन लीजिए। फॉलिकल बनने के लिए पाकिस्तान में, यूरोप में, दुनिया में कहीं भी अगर कोई जाएगा, पेशेंट जाता है, उसे प्रोजेस्टेरोन हार्मोनल ट्रीटमेंट दिया जाता है, क्लोमिड है, पालाडिल है, जो मुख्तलिफ अद्वियात हैं। उस दवा से आर्जी तौर पे तो फॉलिकल ग्रो तो कर जाते हैं, लेकिन बहुत ही रेयर उसके अंदर चांस होते हैं कि औरत कंसीव करे। अगर आपने फॉलिकल ग्रो करना है तो तमाम मेरे पेशेंट जो आप बैठे हैं, जो सुन रहे हैं, जो कॉल करने वाले हैं, इसको आप गिरह से बांध लीजिए। फौरी तौर पे अपने आप में तब्दीली लाइए, अपना वक्त लगाइए, अपने शौहर को वक्त देने की कोशिश कीजिए, सोचना बंद कीजिए, बनिए संवरिए सिर्फ शौहर के लिए, वरना किसी के लिए। अल्लाह का जो हुक्म है मफहूम इस तरह से है, तुमसे मुराद औरत के लिए कि तुम्हारा बनना, सवरना, सोचना, समझना, दिल, दिमाग, ये जिस्म इमानत है शौहर की। जब शौहर आने लगे तो सुबह से तैयारी करो कि तुम्हारा शौहर घर आने वाला है, उसको किस तरह से आप वक्त दोगी, उसको कैसे रिस्पॉन्स देगी। नबी पाक ने हमें समझाया, हमें समझ में बात नहीं आई। हमें अपने नबी को देखिए, हमारे नबी की जो थे, ये हमारे मशरे राह हैं, जो हमने उनको छोड़ दिया तो आज अल्लाह हमसे नाराज हो गया है। तो अल्लाह को राजी करने के लिए आप उनके बताए हुए असूल पे चलिए, गुस्सा कम कर दीजिए, सोचना बंद कर दीजिए, घूमना कम कर दीजिए, शॉपिंग बंद कर दीजिए, अपना मकसद पूरा कीजिए। जब आपका मकसद पूरा हो जाएगा, आपको दिमाग में रहेगा कि मैं वक्त अपने शौहर को किस तरह से दूं, वक्त अपने शौहर को किस तरह से एंजॉय करूं, उसको कैसे आपको राजी करूं, उसके लिए कैसे बनूं। जब आपके दिमाग में चीजें आएंगी तो आपको डिजायर डेवलप होगा, उस डिजायर से आपके फॉलिकल एक स्ट्रॉन्ग ग्रो करेंगे विदाउट एनी हार्मोनल। इसका मतलब राबिया जो है वो मायूस ना हो, ठीक है? डॉक्टर्स के कहने पे नहीं, आप खुदा से मांगे। ऐसे इसे तो अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 बच्चे मिलेंगे हैं। अरे वाह राबिया, अगर फोन रखते हुए तुमने नहीं सुना तो इंशाल्लाह हमारी दुआ है खुदा से, और डॉक्टर साहब को उम्मीद है कि इंशाल्लाह 2-3 बच्चे होंगे तुम्हारी गोद में, है ना? फिर फोन जरूर करना, भूल नहीं जाना मुझे लगता है सारे लोग मुझे भूल जाएंगे बाद में। अच्छा जी, मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है मिस्टर मिसेज आरिफ, जिनकी शादी को 8 साल हो गए। अच्छा, आपके यहाँ कोई भी औलाद नहीं है डॉक्टर साहब? उम्र कितनी है आपकी? 26-27 साल हो गए। मैं इनकी पूछ रहा हूँ। आपके पास माइक लगा हुआ है? हाँ बताएं। उम्र 30 साल। 30 तक होगी इनकी, 30 साल। 30 सही वाली? जी सही 30 जी तक। जी। आपको छोटी लग रही है बड़ी? अच्छा जी, आप कभी कंसीव किया आपने? जी कभी आपकी प्रेगनेंसी हुई, हमल ठहरा आपको? नहीं, कभी जी। कभी भी नहीं ठहरा? डॉक्टर को दिखाया? जी दिखाया। उन्होंने क्या बोला आपसे? अभी जिस डॉक्टर को मैंने दिखाया था ना, उन्होंने मुझे वरम बताया है, लाहौर। तो उन्होंने मुझे चावल वगैरह सब चीज़ें मना कर दी थी। देखिए, अगर चावल से मना होता तो कोरिया, बर्मा, इंडोनेशिया और बांग्लादेश में तो होता ही नहीं, कोई बच्चे नहीं होते फिर तो।
मैंने खाने भी छोड़ दिए थे इसी वजह से। कह रही हूँ मैंने खाने भी छोड़ दिए थे इसी वजह से। देखिए, ये इससे खाने पीने से कोई ताल्लुक नहीं है, ये अल्लाह का एक निज़ाम है। अभी जो मैंने बातें की, आप सब लोग इसको गिरा बांधिए, या आपको सब लोग गुमराह करेंगे कि आप ये ना खाइए, आप ऐसा ना कीजिए, आप ऐसे कीजिए। हमने छोटी सी बातें कही है, पूरी उसके अंदर उसमें पूरा मुकम्मल इलाज है। ये मैंने आपको इलाज बता दिया है। दवा से होता तो कराची की बहुत आला तरीन टॉप गायनिकोलॉजिस्ट किसी को इलाज नहीं है। क्या उनके पास पैसे नहीं है? क्या उनके पास दवा नहीं है? ये अल्लाह का काम है। तो खाने पीने से कोई ताल्लुक नहीं आपका है, ठीक है। आप बिल्कुल अपने आप को खाने की तरफ ना जाए, आप हर वो चीज़ खाएं जिसने मना किया है। अब मैं एक मिसाल के तौर पे, मैं जो गुफ्तगू करता जा रहा हूँ उसमें सब चीज़ को आप आपका इन्वॉल्व करता जा रहा हूँ, ताकि आपकी सब सहन क्लियर हो जाए। हर चीज़ के आने का मकसद ये है कि आपको फ़ायदा हो, जो जिस मकसद से हमें बुलाया गया वो मकसद पूरा होना चाहिए। पहली चीज़, बात अक्सर कहते हैं लोग हैं कि ये मर्दों को खट्टा नहीं खाना चाहिए। अक्सर कहते हैं इंडिया का साउथ है, जिसमें हैदराबाद तकन है, मद्रास है, ये जहाँ हर खाने में खट्टी चीज़ मिलाई जाती है, उनकी औलाद कैसे होती है? खट्टे से क्या ताल्लुक? एक तो ये चीज़ क्लियर हो गया आप लोगों का, ठीक है। रही बात आपकी, दो चीज़ आपको दी जा रही है, खाइए और अपना गुस्सा बंद कर दीजिए आप। गुस्सा करती हो बहुत ज्यादा, है ना? बहुत ज्यादा। आप पे गुस्सा करती है ज्यादा? नहीं, बस मेरे पे ये किसी अपने अंदर ही, यानी अपने ऊपर ही ज्यादा था। गुस्सा करती रहती है? बहुत ज्यादा। क्यों गुस्सा करती हो, मैं पूछ सकती हूँ? क्योंकि 8 साल से औलाद नहीं हो, उसका गुस्सा तो उससे कुछ नहीं होता। अरे क्या हो, उससे कुछ नहीं होता। पागल हो? है गुस्से वाली लड़की? क्या हुआ, क्यों रो रही है? हाँ? बस यही चीज है। ये चीज खत्म कर दो, काम बन गया इंशाअल्लाह ताला। औलाद चाहिए ना, है ना? आप राब्ता कीजिएगा मुझसे 15-20 दिन के बाद, ठीक है? आप जहाँ भी रहते हो 15 दिन बाद, 20 दिन के बाद आ जाइएगा। और जब गुस्सा ये खत्म कर दे, ये दुख, ये जिस दिन गुस्सा खत्म हो जाएगा उस दिन आपको मिठाई ला खिला देगी ये, इंशाल्लाह। ठीक है? और कोई बात, कोई सवाल करना है आपने? ये डॉक्टर ने जो बताया ना, कोई बीमारी नहीं है। ये आपके नर्वस ब्रेकडाउन होने की वजह से कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम ऑन एयर नहीं बता सकते। हमने आपको उसका इलाज बता दिया, उसे आप गिरा बांध लीजिए, तो वो तकलीफ आपकी दूर हो गई। लेकिन 15 दिन या 20 दिन के बाद आ आपके जाए, पास आए अपॉइंटमेंट। अगर ये चीज हमारी चीज बताई हुई इस पे अमल कर ले तो इंशाअल्लाह मेरा ईमान है कि दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी इसको। तो 15 दिन आप क्या कहेंगे, किस चीज पे अमल करें? जो बताया अभी मेरे समझाया। ठीक है, गुस्से पे, उदास नहीं होना, मायूस नहीं होना। आप नमाज पढ़ती हो? जी नमाज की पाबंदी करेंगी? नमाज तो मैं पढ़ती हूँ। नमाज छोड़ेंगे नहीं आप? सिर्फ आपसे मिलने के लिए एक उम्मीद लेकर आए हैदराबाद से यहाँ पे, और इंशाल्लाह ना उम्मीद होके नहीं जाएंगे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, और कहते हैं ना कि कबूलियत का कोई भी वक्त होता है। आज लाखों लोग हमें देख रहे हैं, जितने लोग यहाँ पर आए हैं, और जो जोड़े जो हैं वो महरूम है औलाद से, उनके पास औलाद नहीं, उन सब के लिए दुआ करें कि खुदा सबको दे। पता नहीं मेरी दुआ कबूल हो, आपकी दुआ कबूल हो। मिस्टर मिसेस काजिम हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे, उनसे बात करेंगे। और आपकी आंखें भी नम है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्यों, तो इनसे बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा, देखते रहेगा द मॉर्निंग शो। गुड मॉर्निंग। जी, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग शो, और आज हम शो कर रहे हैं बेऔलादी पे, और आप सबकी फरमाइश पे और आप सबकी ख्वाहिश पे हमने एक दफ़ा फिर यहाँ पे इनवाइट किया डॉक्टर हिलाल अख्तर माहपूरी साहब को। तो वो मेरे साथ हैं, और मेरे साथ यहाँ पे इस तरफ मौजूद हैं मिस्टर मिसेस काजिम।
14 साल हो गए आपकी शादी को और आपके यहाँ एक माशाल्लाह बेटा है 13 साल का, और 13 साल के बाद आपको बच्चा नहीं हो रहा और आपकी ख्वाहिश है। जी 13 साल हो गए हम मेरी शादी को, और मेरे उसके बाद 4 मिसकैरेज कितने हुए आपके? 4 मिसकैरेज 4 मिसकैरेज जी। अच्छा जी। और मैं कंसीव तो कर लेती हूँ सिर्फ जवाब दे दीजिए, जी। एबॉर्शन कितने हुए? 4। आपने टेस्ट कराया काजिम साहब? जी अपना टेस्ट कराया? जी टेस्ट नहीं कराया मैंने। हैं? कराया क्यों नहीं कराया आपने टेस्ट? जी मैंने कहा कि प्रॉब्लम नहीं थी, तो इसलिए मैंने किसकी? महसूस नहीं किया कि मेरे मैंने प्रॉब्लम। आपने महसूस टेस्ट कैसे कराया नहीं है? किया? मैंने अपने इसका कोई कसूर नहीं है, इनका टेस्ट होगा। इनकी स्पर्म की तादाद बहुत कम है, समझा। जब तक इनका ट्रीटमेंट नहीं होगा ये अबॉर्ट करती रहेगी, और एबॉर्शन हो जाएगा, मिसकैरेज हो जाएगा, ग्रोथ नहीं होगी, फीटल पोल नहीं बनेगा, कार्डिक लेकिन एक्टिविटी नहीं डॉक्टर होगी। साहब एक बात यहाँ पे कि वो कंसीव तो करती है। तो कंसीव तो करती है ना, तो कंसीव करती है, ये क्यों इलाज कराएगी फिर? ये कंसीव तो करती है। अच्छा, इसके बाद जो देखिए अक्सर ये सुना है कि अगर औरत कंसीव करती है और उसके यहाँ होल्ड नहीं होता बच्चा, नहीं इसका नहीं, मतलब कोई उसमें इसका प्रॉब्लम कोई है। ताल्लुक नहीं है सब। अच्छा। ठीक है, कंसीव तो करती है ना। ये है इनको आपको डॉक्टर ने क्यों नहीं बोला टेस्ट कराने के लिए? आपको डॉक्टर ने क्यों नहीं कहा टेस्ट कराने के लिए? नहीं, मुझे किसी डॉक्टर ने बताया नहीं ऐसा। लेकिन अगर बोलेंगे तो आप कराएंगे ना? तो कराएंगे, लाज आप सबसे पहले अपना टेस्ट कराइए, ठीक है। आपके रिपोर्ट में थोड़ी गड़बड़ है, जब तक आपका ट्रीटमेंट नहीं होगा ये नॉर्मल डिलीवर नहीं कर सकती बच्चा, ये वक्त का ज़या हो जाएगा, इसका कोई काम नहीं है। आप अपना टेस्ट कराइए, इसलिए कि आपके अंदर एबनॉर्मलिटी है थोड़ी सी, आपके स्टोमक अपसेट रहता है बाज़ औक़ात। जी इनको प्रॉब्लम है स्टमक। जोर से बोलिए, हाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम। आवाज़ से बुलंद बोलिए ज़रा सा। स्टमक की प्रॉब्लम है डॉक्टर स्टोमक की प्रॉब्लम रहती है, क्रैम्प, टांगों में क्रैम्प महसूस करते हैं आप? साहब। बहुत ज्यादा फौरी तौर पर टेस्ट करा लीजिए। रात को वाह। सोते में बहुत ज्यादा चलो, होता है। समझ में आ गया। ठीक है, तो फिर इंशाल्लाह हाँ इनके यहाँ- हाँ, अरे भाई, माशाल्लाह। इलाज तो हो। क्या ख्वाहिश है? बेटा है तो बेटी ये ख्वाहिश वाहिश की नहीं, अल्लाह की मर्जी है। अल्लाह की मर्जी है ना। चले अल्लाह करे कि आप टेस्ट इंशाल्लाह- कराएं, हफ्ता 15 दिन के बाद आप मेरे पास आ जाइएगा। अभी चूंकि रश बहुत ज़्यादा है, ठीक, आ जाइएगा, इसको भी साथ ले आइएगा, आपका मसला हल होगा, मसला नहीं है। इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मेरे साथ यहाँ पे मिस्टर मिसेस मुनव्वर हुसैन भी बैठे हैं। 8 साल हो गए शादी को, इनकी कहानी सुनेंगे, लेकिन मेरे पास एक कॉल है नजमा की। अस्सलाम वालेकुम नजमा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरी जान, क्या बात करना चाहेंगी मैं डॉक्टर साहब से? कैसे जल्दी शुक्रिया जल्दी, अदा करूं उस बात का जो मेरी कॉल लग गई है। बस मैं अब डॉक्टर जल्दी साहब जल्दी से बात करना चाहती हूँ। हाँ, मेरी शादी को 20 साल हो चुके हैं और मेरे शुरू में 2-3 मिसकैरेज हुए हैं अच्छा, और उसके बाद बच्चा नहीं हुआ। उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र अब कम से कम 45 साल है। कितनी? 47 45। 45, ओके। तो आपके यहाँ कोई बच्चा नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। आपने डॉक्टर्स को दिखाया? मैंने बहुत डॉक्टरों को दिखाया, मैंने लाहौर में कोई डॉक्टर छोड़ा ही नहीं है। बहुत इलाज करवाया, बहुत दवाइयाँ खाई होंगी? जी बहुत ज्यादा। प्लीज डॉक्टर साहब से बात करें कि मुझे कोई ऐसा बता दें कोई। मैं होम्योपैथिक इलाज करवाया जिससे मेरा मैदा भी खराब हो गया। अब आप बताइए, बात करें। अरे अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह पाक आपकी मदद फरमाएगा। ये आपके पास आए? अल्लाह से दुआ करें। ठीक है डॉक्टर साहब, कोई ट्रीटमेंट? तो आप 15-20 दिन के बाद मुझे कॉल कर लीजिएगा, तो फिर मैं आपसे बात करूँगा, ठीक है? नजमा का नंबर नोट कर ले अपने पास प्लीज। ठीक है डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक सवाल थोड़ा सा, क्योंकि कुछ लोगों की एज जो है, जी हाँ, तो एज से कितना फर्क बहुत, होता है? एज- औरत कितनी देखिए, उम्र तक कंसीव कर सकती है? करने को तो अल्लाह की जात है, अल्लाह पाक, बेशक, अल्लाह के बेशक। सिवा इसमें इंसान कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मैं कह हम दूंगा ये, डॉक्टर्स का और आपका इल्म देखिए क्या मेडिकल कहता है? साइंस कहता है 40 तक जो है, 40, 40 के अंदर जो है वो एबनॉर्मलिटी शुरू हो जाती है। ठीक है। लेकिन अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह ताला 46 42 इयर्स में भी अभी किया है। वो केस आपका, इनका एक केस हमारे पास जिनको हम जानते हैं, उन्होंने 42 इयर्स मतलब बंदी की एज थी और उन्होंने कंसीव किया, जिनको लग ही नहीं रहा था कि इस उम्र में वो कर पाएंगी। तो बेशक अल्लाह की देन है, अल्लाह की तरफ से दुआ करें, और मुझे लगता है कि आपकी दुआ नजमा जरूर कबूल होगी। और डॉक्टर साहब इंशाल्लाह आपसे फोन पे भी मजीद तफसीलात आपको बताएंगे, आपसे बात करेंगे। अच्छा जी, मुनव्वर साहब, अस्सलाम वालेकुम। आपके अंदर की ख्वाहिश ना उस वक्त नजर आ रही थी कि मैंने पहले बैठना है। हम तो रात भर सोए भी नहीं हैं कि डॉक्टर साहब से किसी तरीके से मुलाकात हो जाए आपके थ्रू। अल्लाह ताला इनको तौफीक दे के सबके मसले मसाइल हल शादी करें। कितना अर्सा हो गया आपके? जी 8वां साल चल रहा है।
उम्र आपकी कितनी है? अरे वो देखो वो ऐसे ऐसे परेशान 26 कोई मसला नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। वो सेम कोई प्रॉब्लम, घर में कोई है नहीं, मैं जॉब से होता हूँ सारा दिन, घर में अकेली, तो वो अकेलापन इस तरह महसूस होता है। कहाँ रहते हैं वो आप? हम लोग हैं वैसे बेसिकली भावलपुर, इमर खान से ताल्लुक है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे जॉब से मेरे यहाँ पे कराची में। टेस्ट कराए आप? जी टेस्ट कराए हैं। आपने अपना टेस्ट कराया? इनका टेस्ट कराया था पहले, तो हार्मोन्स के प्रॉब्लम बताए थे, इंसुलिन्स की प्रॉब्लम्स, हार्मोन्स वगैरह के प्रॉब्लम्स बताए थे। और आपने वो अपना इलाज टेस्ट- मैंने कराया था, तो उन्होंने मुझे भी कुछ उन्होंने एबियान वगैरह इस तरह की टैबलेट्स दी थी कि थोड़ा सा जो है ना इम्प्रूवमेंट चाहिए। तो उसके बाद 2-3 दिन में टेस्ट करा, उन्होंने कहा ठीक है, इट्स ओके। तो हम लोग आखिरी लिमिट तक चले गए कि हम लोग टेस्ट ट्यूब तक चले गए। उन्होंने कहा ये करा लो, जल्दी हो जाएगा अगर आपको जल्दी ज़्यादा है। अच्छा तो वो भी जी वो भी हम उस टाइम IVF तक चले गए। करा लिया है? जी वो कराया, लेकिन उसमें भी कोई वो खातिर खा वो नहीं हुआ। कितना पैसा भी खर्च हुआ जी होगा पैसा नहीं, वो एक हॉस्पिटल है, मैं नाम अगर कहें तो ले सकता हूँ। नहीं, मेरा तो वो ख्याल है ना- 50,000 पैकेज होता है उसका, तो वो टूल प्लाजा पे उनका वो है, वहाँ तक हम लोग जाते रहे हैं, लेकिन वो अल्लाह की तरफ से शायद अभी, लेकिन इनका एक फैमिली भी है, थोड़ा फैमिली में भी असर। फैमिली से ताल्लुक नहीं है, देखिए 2 बहनें इनकी सिस्टर्स हैं। बहनों से ताल्लुक नहीं, ओके, बहनों से ताल्लुक नहीं इसको। आप फौरन बता दिया कि अगर इसको बोला इसकी माँ को, माँ से क्या ताल्लुक इसका? ठीक है। ये हमारी बड़ा गलत बात है। फैमिली के अंदर है, फैमिली से क्या ताल्लुक है? तो आप फैमिली को क्या करें? आप मुझे 2 बात बता दीजिए जी बीबी, हमें 2 बात बता दीजिए। आप आपकी कमर में तकलीफ अक्सर रहती है? सर में दर्द रहता है, कमर में तकलीफ रहती है? इतनी नहीं रहती, कभी कभी रहती है। आधे सर में दर्द महसूस करती है? जी बिल्कुल। ऐसा दर्द महसूस किया जैसे उल्टी जैसी कैफियत हो जाती जी, है? बिल्कुल, वो तो आपकी हर गर्दन में बात अक्सर तकलीफ रहती है? गर्दन में नहीं रहती आपका हाथ सुनने लगता है उल्टा वाला? जी, बाजू सुन रहता है। बस ठीक है, वक्त निकाल के 15-20 दिन बाद आ जाइए, आपका इलाज होगा। आप ये ना पूछिएगा कब होगा, ये अल्लाह का हुक्म होगा, जब होगा हो जाएगा, और इसको अल्लाह पाक अता फरमा देगा। ठीक है, टेंशन में ना रहे। देखिए आप तो हर वो एंड कर लिया, जो राजुल वक्त हमारे यहाँ तरीक़ेकार है, जो मौजूदा हमारे यहाँ तरीक़ेकार है राज हो रहा, उसको भी आपने हाथ कबूल कर लिया है। अब अल्लाह पे भरोसा कीजिए, तशरीफ ले आइए और मायूस मत होइए। चलो जी, ये तो खुशी की बात है, अब तो खुश हो जाओ। अच्छा मुझे बताओ और यहीं पे आना, आगे बताना। मुझे अगर तुम लोग भूले हो ना कोई भी, मैं सीरियसली इतना नाराज होंगी, मैं मुझे लगता है सारे भूल जाएंगे, बाद में कहेंगे नहीं नहीं अभी तो हम अपना बच्चा नहीं ला सकते, हमारे बच्चे को नजर लग जाएगी, अभी तो हम नहीं लाएंगे, हमारे बच्चे को नजर लग जाएगी। तो मुझे माइक दे। हाँ जी, पहले हम आपके पास ले आएंगे। हाँ डॉक्टर साहब के पास देखे मैं लाई। कि नाम आप ही रखे पहले। अरे वाह, बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे 2 फैमिली की बात हुई तो 2 बहनें भी हमारे साथ हैं। कहाँ से आपका ताल्लुक है? अरे बाबा, मैं तो खुशियों के लिए कर रही हूँ, ये तो ronaDona.com लगा हुआ है यहाँ पे। डॉक्टर साहब देखिए हमने आपसे बात की, अल्लाह पे भरोसा कीजिए, आप अल्लाह से मांगिए, अल्लाह से मदद मांगिए, ये इनको अल्लाह ही देगा। इंसान के बस में कुछ भी नहीं है, इंसान कुछ नहीं कर सकता। आपको प्रॉब्लम बताओ अपनी। डॉक्टर मजबूर है, डॉक्टर को कुछ नहीं पता, खुद का पता नहीं कि रात होगी कि नहीं होगी। डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि इलाज नहीं हो सकता, ट्यूब्स बंद है। जी, ट्यूब्स क्या? ट्यूब्स फिलिपिन ट्यूब ब्लॉक हो जाता है। तो ठीक है, नॉर्मल एज कितनी है आपकी? 31 तक है। नो प्रॉब्लम। डॉक्टर साहब मुझे यहाँ पे ब्रेक लेना है, जवाब मैं आपसे ब्रेक के बाद लूंगी, ताकि अगर डॉक्टर्स ने किसी और खवातीन को भी यही कहा है कि आपके ट्यूब जो है वो ब्लॉक हो गए, तो उनको क्या करना चाहिए जानते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो हमारे साथ रहिए। अरे भाई बीना, क्या सुना आपने? सहूलत बाजार ने तो कमाल ही कर दिया। अब आप बनवा सकते हैं अमेरिका, कनाडा, यूके और यूरोप में रहकर अपने स्टाइल और अपनी पसंद के कपड़े, वो भी अपने दर्जी से। सिर्फ 7 दिन बाद आपके कपड़े आपके पास। मशहूर ब्रांड्स के लेटेस्ट कलेक्शन, उम्दा सिलाई, माहिर कारीगरों की ज़ेरे निगरानी, सहूलत बाजार से। तो आज ही विजिट कीजिए www.सहूलतबाजार.com।
वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग शो। डॉक्टर साहब हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं और हम बे औलादी जो लोग ना उम्मीद हैं वो आज एक उम्मीद लेकर आए हैं। उम्मीद के साथ हमारा शो देख रहे हैं और उम्मीद है उनके दिल में कहीं ना कहीं, और ख्वाहिश तो यकीनन सबको है। वो कॉल्स भी कर रहे हैं, तो आप कॉल करें, डॉक्टर साहब से बात करना चाहते हैं बिल्कुल करें। दो बहनों से हम लोग बात कर रहे थे, रुखसाना और शाजिया से, और मैं चाहती हूँ कि लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट आए, उनके आंखों से आंसू बह जा रहे हैं। और एक बात यहाँ पे और कि अगर किसी की शादी को बहुत कम अरसा हुआ है तो मुझे पता है कि उसके पीछे, और सब समझते हैं, आप भी समझते हैं, मैं भी समझती हूँ, उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई ताने, कहीं ना कहीं कोई नजरें जो उस लड़की को या उस लड़के को इतना परेशान कर लेते हैं वो सवाल या वो नजरें, और वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, स्ट्रेस होता है उनको, अब क्या होगा उनको समझ नहीं आता, और फिर उनके लिए बच्चा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, लड़की के लिए स्पेशली कंसीव करना। तो प्लीज़ इन चीजों से बाहर निकलें। किसी को कुछ 2-3 साल 4 साल तो आराम से दे दें भाई, कोई बात नहीं। 2 साल तक तो खामोश रहें, एटलीस्ट 2 साल तक खामोश एडजस्ट होने दें, खानदान को एडजस्ट होने दें, समझने दें। बिल्कुल, ये ऐसे थोड़ी है कि जनाब पहले मामला दूसरे थे, अभी मामला दूसरे हैं। बिल्कुल। और मैं उन बहनों को कहूंगी और उन भाइयों को जिनको 2 साल के बाद सवाल आना शुरू हो जाते हैं, बल्कि इस साल के बाद ही सवाल आना शुरू हो जाते हैं, बल्कि 1 महीने के बाद ही आना शुरू हो जाते हैं, तो प्लीज आप लोग परेशान ना हो, ना अपनी अम्मी की बात पे, ना अपनी सास की बात पे, ना नंद की बात पे, ना देवरानी की बात पे, ना बहन की बात पे, किसी बात पे परेशान ना हो। चिल करें, आराम से अपनी जिंदगी को एंजॉय करें, अपने मियाँ को समझने की कोशिश करें और आपका मियाँ आपको समझने की कोशिश करे, बस। अच्छा जी, रुखसाना और मेरे साथ है शाजिया। आपकी रिपोर्ट्स मैंने ब्रेक में डॉक्टर साहब को दिखाई हैं। डॉक्टर साहब जो पहले आपने रिपोर्ट देखी थी वो शाजिया की, रुखसाना की। ये आपके हस्बैंड का एजोस्पर्मिया है, तो आप अपने हस्बैंड को कहें कि किसी यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं, यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं। तो यूरोलॉजिस्ट आपको प्रॉपर गाइड भी करेगा, जो उसका प्रोसीजर होगा बता देगा, जो ट्रीटमेंट होगा दे देगा। इसका ट्रीटमेंट क्या होगा यूरोलॉजिस्ट भी कंसल्ट करेंगे, ये तो ये काम यूरोलॉजिस्ट का है। ठीक है, हाँ, ये दे आर परफेक्ट, मतलब ये काम उनका है, ये वो बताएंगे तो सही बता भी देंगे, प्रॉपर उनकी डायग्नोसिस होगी, प्रॉपर उनकी फाइंडिंग होगी, जो तरीक़ेकार होगा, जो ट्रीटमेंट होगा बता देंगे। तो गायनी की डॉक्टर या वहाँ पे जाने का फायदा नहीं, यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं। ठीक है, यूरोलॉजिस्ट। ओके, हम मजीद आपको एक्सप्लेन कर देंगे। और कहीं इधर उधर जाने की दिखाने की, हकीम को दिखा ले, फलां होम्योपैथी को दिखा दे, फलां दिखा दी, सब बेकार की बात है, वक्त का ज़िया करेंगे। और आपके पास भी आने की अभी जरूरत कुछ नहीं, नहीं, सिर्फ आप यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं, वक्त का ज़िया ना करें। किसी भी अच्छे बड़े अल्हम्दुलिल्लाह कराची में अच्छे यूरोलॉजिस्ट हैं, उनको कंसल्ट करें, आपको सही गाइड कर देंगे। ठीक है। और मेरी दूसरी बहन शाजिया, और उनकी जो फाइल मैंने आपको दिखाई, ट्यूब ब्लॉक बताया था ना आपने। देखिए, ट्यूब ब्लॉक है, उसमें ब्लॉक होने की वजह ये है कि ट्यूब के अंदर एक फ्लूइड आ जाता है, फ्लूइड आके जम के बंद हो जाता है। तो ये किसी वक्त अल्लाह का हुक्म भी हो जाता है, और आपके मामलात के अंदर ज़हनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे अगर आपके प्रॉपर, आप घर से लेके सुबह से लेकर शाम तक अपना घर का काम कर रही हैं, आप मसरूफ़ हैं, दिमाग से निकाला हुआ है, तो ये कुदरती निज़ाम है अल्लाह पाक की, बग़ैर किसी ट्रीटमेंट के, बग़ैर किसी सर्जरी के ये खुल भी जाता है। एक तो ये, अगर आप समझती हैं कि ट्यूब ब्लॉक है और हमें जल्दी ट्रीटमेंट चाहिए, तो अब हमारे यहाँ आजकल पाकिस्तान में भी है, दुनिया में भी इलाजुल वक्त तरीक़ेकार जो है मौजूदा, एक्सी है, IVF है, जो भी तरीक़ेकार है वो आप करा सकती हैं। अगर वो करा लें और हो जाता है तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं होता है तो वक्त का इंतज़ार कीजिए, किसी वक्त भी अल्लाह पाक अपना करम कर देता है। लेकिन दवाइयों से जो, अगर आपके पास ट्रीटमेंट है तो देखिए, बात ये है कि मैं अगर आपसे कहूँ कि मेरा ट्रीटमेंट करूँगा और इसमें लग गए 3 से 4 साल, तो आपकी 4 साल तो उम्र चली गई। फिर आपको लोग कहेंगे बेटे टेस्ट क्यों नहीं करा लिया आपने, एक्सी क्यों नहीं, IVF क्यों नहीं करा लिया। बेटे यू गो फॉर द IVF, यू गो फॉर द एक्सी, जो तरीक़ेकार है, जो हमारा राइज है, जो चीज़ है वो आप कराएं। अगर उससे नहीं होता है तो फिर बात की कहानी है। पहले अपना वक्त को आप बचाने की कोशिश करें। हमारे यहाँ कराची में बहुत से इदारे ऐसे हैं, आप उनसे रब्ता कर लीजिए। ठीक है, हम शो के आखिर में भी इनको लिख के दे देंगे, प्रॉपर समझा देंगे। कोई अच्छे जो डॉक्टर हों उनको दिखा लें, वो किसी भी यूरोलॉजिस्ट है, आखार में भी है, OMI में भी है, निजामुद्दीन में भी, हर जगह, हर अस्पताल में। ठीक है, हम आपको बता देंगे, लेकिन ना उम्मीद नहीं, तो अल्लाह का काम है, आप अपनी मर्जी से कर दिया क्या। लेकिन ये दोनों आपके पास, मतलब अभी नहीं, अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। ठीक है, अपना फौरी तौर पर अपना वक्त ज़ाया किए बगैर आप प्रोसेस में चले जाए, अपने प्रोसेस में चले जाए। अच्छी बात है ना कि वो सही कह रहे हैं कि 3-4 साल ज़ाया हो, अच्छा है, जो प्रॉपर इस चीज़ का इलाज हो सकता है वहाँ पे जाना चाहिए। ठीक है, कोई सवाल करना है जी।
बाद ये- में समझ लेंगे इसके बारे में, बाद में समझ लेंगे ना इसके बारे में। इंशाल्लाह, मेरी टीम आपको समझा देगी। लारे, इनको एक्सप्लेन कर देना है दोनों बहनों का, एक दफ़ा फिर डॉक्टर साहब से पूछ के इनको एक्सप्लेन कर देना है कहाँ जाना है, किसके पास जाना है। कॉल है हमारे पास। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम हिना। वालेकुम अस्सलाम। जी हिना, डॉक्टर साहब से क्या बात करेंगी मेरी बहन, मेरी जान, जल्दी जल्दी से बात कर लो प्लीज। मैंने डॉक्टर साहब को ये बताना है कि मेरी शादी को 8 साल हो गए हुए, मेरा एक बेटा हुआ था, वो एबनॉर्मल पैदा हुआ, उसके सर में भी पानी था और कमर पे भी फोड़ा था। फिर उसके बाद वो 2.5 साल तक मैंने उसकी केयर की, मतलब काफी उसको मैंने संभाला, लेकिन वो नहीं बचा, उसकी डेथ हो गई 2.5 साल का। उसके बाद हमने दोबारा बच्चे का किया, वो 15 दिनों में मैंने कंसीव कर लिया, लेकिन 2.5 माह बाद मेरा जो बेबी था ना, मतलब उसकी हार्ट बीट, उसकी मिसकैरेज हो गया मेरा। उसके बाद डॉक्टर ने हमें 6 महीने का गैप बताया, लेकिन मैंने ना 3 महीने बाद ही दोबारा कोशिश की बच्चे के लिए, लेकिन ये हुआ कि कंसीव ही नहीं कर पा रही थी मैं। इतने मसले निकलते आ रहे थे, कभी हार्मोन्स का कोई मसला आ गया, पीरियड्स नहीं प्रॉपर हो रहे थे। आप दोनों समझ में आ गई बात मेरे, आप दोनों में मियाँ आपस में रिश्तेदार हैं? जी जी डॉक्टर साहब। आप दोनों मियाँ आपस में रिश्तेदार हैं, कजन हैं आप लोग? नहीं नहीं, हम रिश्तेदार हैं, लेकिन हम लोगों का ब्लड ग्रुप एक है, बी पॉजिटिव। जी हाँ, बस कुछ कोई ऐसी हुई। बहरहाल आप भी अपना प्रॉपर फिर से ट्रीटमेंट लीजिए, कराइए इन्वेस्टिगेट, और अपने हस्बैंड का ज़रूर टेस्ट कराइए। ये ना सोचिए कि आपने कंसीव कर लिया, आप हस्बैंड का ज़रूर टेस्ट कराइए। और जब भी आप कहाँ से, कराची में कहाँ हैं आप? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मैं लाहौर में हूँ, अगर कराची में होती तो मैं आपके क्लिनिक पे भी आती। नहीं, आप जाके अपना टेस्ट कराइए, अपना ट्रीटमेंट लीजिए, कोई ना कोई अबनॉर्मलिटी होगी, वो दूर हो जाएगी, परेशान ना होइए, हो जाता है। डॉक्टर साहब, मैं 3 साल हो गए दवाइयाँ खा रही हूँ। बीबी, मेरे पास एक ऐसा भी पेशेंट आया जिसके 9 बच्चे हुए और 1 घंटे के बाद बच्चे की डेथ हो जाती थी। जी जी। समझा? 9 साल तक 9 बच्चे होते और 1 घंटे के बाद बच्चा एक्सपायर हो जाता। अब आप सुनिए उसकी कहानी। जब मैं गया, जब मैंने ट्रीटमेंट किया, जब कंसीव किया, तो मैं मौजूद रहूंगा, मैं पहुंचूंगा। जब मैं अस्पताल गया तो उसने कहा कि डॉक्टर साहब आप ये बताइए कि आपने मेरे बच्चे को देखा है, मेरे बच्चे के हाथ सही है, आंख सही है, पैर सही है, इसलिए 1 घंटे के बाद आके बताएंगे कि बच्चा मर गया। ऐसा है। और वही अल्हम्दुलिल्लाह आज उस बच्चे को, आज वो बच्चा 7-8 साल का हो गया है, उसे अपने सीने से लगा के रखती है, कोई बच्चा छीन ना ले। ऐसा नहीं है, अल्लाह पे भरोसा कीजिए, आप इतना परेशान ना होइए, तो कुछ भी नहीं है मेरे पास। देखिए कुछ भी नहीं है, आपको एक होता है, ये अल्लाह का काम है। अल्लाह ताला किसके साथ क्या करता है ना हमें इल्म है, ना किसी को पता है। खुदा। और डॉक्टर साहब मैंने करवाया, वो ट्यूब्स का भी कहते हैं, ट्यूब भी ब्लॉक हो गई हैं आपकी। वो तो कुछ बात नहीं, आप अपने इन्फेक्शन की वजह से। एक ब्लॉक होगी, एक तो है ना, तो कोई मसला नहीं है। आप अपने शौहर को भी टेस्ट, सबसे पहले अपने शौहर को टेस्ट कराइए, ठीक है? ये जिम्मेदार सिर्फ औरत नहीं है, दोनों का हिस्सा होता है, दोनों बराबर के मामलात होते हैं। कोई शर्मिंदगी की बात जी नहीं, हमारे ऐसा पास नहीं है, कोई मसला ये है कि अगर औरत में मसला हो। ब्लड ग्रुप आपका एक है, अल्हम्दुलिल्लाह आपके लाहौर में अच्छे डॉक्टर्स हैं, उन डॉक्टर्स को आप कंसल्ट कीजिए, आपका मामला हल हो जाएगा। ऐसा कोई नहीं है, इतना जल्दी आप परेशान ना होइए कि आपको किसी ने कुछ कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप हो जाएगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। और मैं डॉक्टर साहब ये बात कर रही थी कि अगर हमारे पास एक तो औरत टेस्ट सारे कराएगी ना, मर्द नहीं कराएगा भाई, और अगर पहले भी बच्चा है तो फिर भी मर्द को भी टेस्ट कराने चाहिए, और इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। अगर औरत बीमार हो सकती है, उस पर शर्मिंदा नहीं होते आप, तो अगर आप में कोई प्रॉब्लम है तो इसमें शर्मिंदगी की कोई बात नहीं। खुदारा ये भी एक मर्दानगी कि आप एक्सेप्ट करें उस चीज को, प्लीज। मर्दानगी ये भी है कि आप एक्सेप्ट करें, हाँ ठीक है मसला है, मैं इलाज करवा रहा हूँ, बात खत्म। अच्छा, मेरे साथ साजिद साहब हैं और उनके मिसेज हमारे साथ मौजूद हैं। जी साजिद भाई, क्या बात करें, कितने साल हो गए आपकी शादी को? 3 साल। मुझे पता है मार पड़ेगी या डांट पड़ेगी, अब देखते हैं क्या होता है आपके साथ। 3 साल हुए, इलाज कराया आप लोगों ने? 2 डॉक्टर से करवाया था, रेडी डॉक्टर से, और 2 हकीम से। मतलब आपको कहा क्या उन्होंने? तो डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि टेस्ट वगैरह मैंने भी अपने भी कराए थे, वाइफ के भी कराए थे, तो मेरे तो ओके थे, और वाइफ का मतलब ये बता रहे थे कि उनको इतना प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा इंशाल्लाह। प्रॉब्लम नहीं तो उन्होंने बताया नहीं कोई कि असल क्या है। तो एक दफ़ा ऐसे 20-25 दिन का मिसकैरेज हुआ था, एक दफ़ा से। आपने टेस्ट अपना कहाँ से कराया था? मैंने सर कोरंगी। अपना टेस्ट आगा खान हॉस्पिटल से करा लीजिए आप। सही जी, अपना टेस्ट करा लीजिए। इसके दिन जो है, आपको लगा हुआ माइक, आप थोड़ी सी ऊंची आवाज है। आप अपना टेस्ट आगा खान से करा लीजिए, ठीक है? और इसके जो है ना, एक बार इसकी बात बनते बनते रह गई थी, जी जी, जिसके बाद से इसको शदीद तकलीफ है कमर में। ये तो है।
वैसे भी हाथ पाँव में भी दर्द रहती है। मैंने हाथ पाथ भी कहा है, हाथ पे से क्या दर्द हो गया? इसको प्रॉब्लम है? पैर में तो ऐसा हुआ था कि पैर आड़ा हो गया था। कोई बात नहीं है, आप अपना टेस्ट कराइए दोबारा, करा के फिर अपने आप को देखिए। जो लोग यहाँ देख रहे हैं, जो लोग बैठे हैं, हफ्ता 15 दिन 20 दिन के बाद आप लोग मुझसे रब्ता करने की कोशिश कीजिएगा। और बहुत सी चीज़ें ऐसी जो मैंने अभी बातों बता दिया है, वही तरीके इलाज का पहला हिस्सा वही है। दवा से अगर होने लगता तो सारे डॉक्टर्स के पास दवाइयाँ मौजूद हैं। बड़े बड़े कराची के अदारे जो इनफर्टिलिटी चला रहे हैं या गायनिकोलॉजिस्ट हैं, जो डॉक्टर हैं, उनकी खुद की औलाद नहीं है। ये अल्लाह का काम है, दवा का काम नहीं है। आप दवा के पीछे और लोगों के पीछे मत भागिए कि मेरे साथ ये हो गया है तो मैं फलां जगह से ये करा लूँ। ऐसा कोई सिलसिला नहीं। अपने घर को संभालिए, अपने घर को देखिए, अपने घर को मामलात को देखिए, एक दूसरे को वक्त देने की कोशिश करें आप लोग। अच्छा, ये कुछ रुखसाना बात करना चाह रही थी, 15 दिन के। जी डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि 15-20 दिन के बाद हम लोग भी आपसे रब्ता कर सकते हैं? नहीं, आप यूरोलॉजिस्ट को दिखाइएगा, वो उसका तो महीना 3-4 महीने का तो उसका प्रोसीजर है। अभी हम आपको लिख के देते हैं। हाँ जी, सही है, हमें सही से बता दीजिए। सही से समझा देंगे, मुझे पता है कभी समझ नहीं आ रहा तो हम आपको लिख के। अंग्रेजी इलाज बहुत करवाया, उन्होंने कहा आराम से आप घर बैठ जाइए, पैसे ना ज़ाया करें, किसी का बच्चा अडॉप्ट कर लें। और शादी के बाद मैंने इधर नर्सरी में पूरा साल इलाज करवाया। उन्होंने DNC की थी, उसका सैंपल में टेस्ट करवाया तो बच्चेदानी में TB आई। उसका मैंने 6 माह इलाज करवाया, बाद में फिर कोई मसला नहीं, तो पीरियड बिल्कुल नहीं आती। बात की कहानी है, मैं आपसे अभी बात कर लेंगे बाद में। मैं यहाँ पे छोटा सा एक ब्रेक लेती हूँ, बहुत छोटा सा ब्रेक है, और डॉक्टर साहब सिर्फ 15 मिनट हमारे साथ होंगे। तो यहाँ पे मेरे भाई वहाँ पे बैठे हैं और ये मेरी फैमिली है, और सिर्फ 15 मिनट हमारे साथ होंगे। तो अगर आप शो के बाद कॉल कर सकती हैं, ब्रेक के बाद तो जरूर कीजिएगा, मैं आपकी कोशिश करूंगी बात करवा दो। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहेगा। गुड मॉर्निंग। जी, आप देखें द मॉर्निंग शो। डॉक्टर हिलाल अख्तर माहपुरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत सारे केसेस से उन्होंने ब्रेक में भी बात की, बहुत सारी चीज़ें बताई, और कुछ चीज़ें वो जब आप क्लिनिक जाएंगे तो वहाँ पे उनसे पूछ लीजिएगा, और कुछ लोगों से वो फ़ोन पे कांटेक्ट करेंगे। तो डॉक्टर साहब, आखिर में आप लोगों को क्या कहेंगे, क्या मैसेज देंगे, क्या बात बताना चाहेंगे जो आम लोगों को नहीं पता, जो समझते नहीं हैं? पहली चीज़ तो ये है, जब शादी हो जाए तो मैंने पहले भी बताया कि कम से कम 2 साल तक इस बात को ना पूछा जाए, क्योंकि आज से 40 साल के मामलात में और आज में बड़ा फ़र्क है। 40 साल पहले इतनी गहमा गहमी नहीं होती थी, ज़िंदगी इतनी तेज़ नहीं थी, अभी ज़िंदगी तेज़ हो गई है। तो अपने आप को अल्लाह के बता, मैं बार बार अल्लाह की बात करता हूँ, उसके तहत अपने आप को क्लोज रखें। अब ये आलम ये है कि इस वक्त हमारे यहाँ जब शादी हो जाती है तो मईयों में जाना है, मेहंदी में जाना है, ये भी करें। वो रसूमात जो हमारे गैर लोगों के हैं, गैर मुस्लिमों के हैं, उन तमाम रसूमात को अपने घर में दाखिल कर लिया तो अल्लाह हमें क्या देगा। तो कम से कम आप लोग जो हैं जिनकी शादी को 2 साल हो गए, वो तो आप रब्ता ना कीजिए और अपने मामलात को तय रखिए। और जिनके प्रीमेच्योर हुआ या एबॉर्शंस हुआ, मिसकैरेजेस हुए, जो कुछ भी हुए, तो उनके लिए यह है कि आप अपने आप के अंदर में तब्दीली लाइए। तब्दीली का ये है कि दवा नहीं है, दवा नहीं है, बात ये है अल्लाह की बात है। तो अल्लाह की बात ये है कि अपने घर में सुकून पैदा कीजिए, बिल्कुल अपने घर में सुकून पैदा कीजिए, एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए, एक दूसरे से लड़ने की कोशिश ना कीजिए, एक दूसरे से आपस में क्लैश ना कीजिए, और किसी दूसरों की बातें मत सुनिए कि आप ये कर लें वो कर लें, ऐसा कुछ भी नहीं। किसी की बात ना किसी से दुआ मांगे, खुदा से, अल्लाह से मांगे, अल्लाह ही मदद करता है। ये अल्लाह का निज़ाम है, इंसान का नहीं है, इंसान के बस में नहीं है।
اور دوا سے سب کو اگر کسی کو کنسیو کوئی کر بھی لیتا ہے تو اللہ کے حکم سے کرتا ہے, دوا سے نہیں ہوتا. اس میں دوا کا کوئی عمل دخل نہیں ہے, اس میں اللہ کا حکم ہے, اس میں اس کا حکم ہو جاتا ہے. اللہ پاک بتا دیتا ہے کہ ہم نے اس کو دینا ہے اور اس کو نہیں دینا ہے. قرآن نے بتا دیا میں جس کو چاہتا ہوں دیتا ہوں, جس کو چاہتا ہوں نہیں دیتا ہوں, جس کو چاہتا ہوں دے کے چھین لیتا ہوں. یہ اس کا کام ہے. تو اس بات کو اپنا پورا یقین بنائیے, ایمان کی پختگی کیجئے اور نماز کی پابندی کیجئے, ایک دوسرے کا خیال کیجئے, آپس میں ڈپریشن کم کیجئے, سوچنا بند کیجئے. اگر آپ سوچیں گے تو سوچنے سے بہت سی چیزیں جسم کے اندر طاری ہوتی ہے, اس طاری سے ہارمونز امبیلنس ہوتے ہیں. اس ہارمونل امبیلنس کی وجہ سے آپ کے اندر ساری تکالیف پیدا ہو جاتی ہے. تو اس سے بچنے کا تعلق یا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اپنے آپ میں تبدیلی پیدا کیجئے, ایک دوسرے میں محبت پیدا کیجئے, یہ جو اللہ کا حکم ہے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کیجئے. اور فوری طور پہ کہ میں دوا لے لوں تو ہو جائے, ایسا کچھ نہیں ہے. اور صحیح لوگوں کے پاس جائیں, صحیح لوگوں کے پاس جگہ پہ جا کے علاج کروائیں. کسی کے کہنے پہ کہ فلانا یہ ہو گیا, نہیں, ایسا نہیں ہے. وقت کا ضیاع نہ کیجئے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہم نے بتایا کہ آپ کے ایکسی کرا لیجئے, وقت بچ جائے گا. مایوس نہ ہوئیے. آپ نے کیا سمجھا, اگر میں نے کسی کا علاج کیا 22 سال کے بعد اگر کسی کو اللہ پاک نے اولاد دے دی تو کیا میری دوا سے ہو گئی؟ نو, سوال ہی نہیں. وہ اللہ کا حکم تھا, اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھ میں لکھ دیا, اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا انعام عطا فرما دیا, اللہ تعالیٰ نے میرے اس کی دعائیں میرے کھاتے میں لکھ دی, وسیلہ بنا دیا. میں بولوں گا کہ میں نے علاج, میں نے دوا سے نہیں, دوا سے پیسوں سے نہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کروڑوں روپے کی علاج کرایا پوری دنیا میں جا کر کے. اس میں ہمارا کوئی کام نہیں ہے, دوا کا کوئی کام نہیں ہے, پیسوں کا کوئی کام نہیں. بہت سارے لوگ ہیں ہمارے, بہت سارے ایسے لوگ ہیں معاشرے کے اندر میں جن کی اولاد نہیں ہوئی. میں کس کا نام دوں؟ بہت سارے اداکار ہیں, محمد علی جن کی اولاد نہیں ہوئی, دلیپ کمار ان کی اولاد نہیں ہوئی. بس خدا اولاد دے اور نیک صالح اولاد دے اور اس کے اچھے نصیب کرے, صحت مندی کے ساتھ دے. اور یہ بھی جو آپ بیٹا بیٹی کے چکروں میں ہوتے ہیں یہ بھی خدا را نہ کرے. دعا کرے کہ خدا اچھے نصیب بنا کے بھیجے اور جو اولاد دے وہ نیک ہو, ایماندار ہو, ایمان والا بچہ ہو, بس بیٹی ہو یا بیٹا ہو. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بہت اچھا لگا. اور انشاءاللہ میں لوگوں کو کہوں گی اب 15-20 دن بعد آئیں کیونکہ آلریڈی بہت سارے لوگ ہو گئے. اور رات کو 3 بجے 4 بجے کال نہ کریں, بس ٹائم کے حساب سے, پاکستان کے ٹائم کے حساب سے آپ لوگ کال کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ, خوش رہیں. اچھا جی, یہاں پہ ہمارے ساتھ ایک اور بھی گیسٹ موجود ہیں جہاں پہ ہم اولاد کی بات کریں. ڈاکٹر صاحب, میرے پاس ایک ایسا والد موجود ہے, اس وقت آئے ہیں, بہت پریشان ہیں. اس کی والدہ, مطلب ان کی وائف ہیں, وہ بہت پریشان ہے کیونکہ ان کی بیٹی 20 سال کی کراچی میں گم ہو گئی ہے. ایک طرف اس طرح اولاد کی بات کریں, ایک طرف اولاد 20 سال کی عمر میں, وہ بھی لڑکی گم ہو جائے تو والد پہ کیا گزر رہی ہوگی, اس ماں پہ کیا گزر رہی ہوگی, ہم آپ کو یہ دکھا سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں. تو مولا بخش ہمارے ساتھ ہیں, پلیز آ جائیے. ڈاکٹر صاحب بالکل آپ کو جانا ہوگا, آپ کی کلینک میں بہت سارے لوگ آپ کا ویٹ کریں. آپ کو بہت شکریہ, پلیز, تھینک یو, بہت شکریہ. السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ہے. اچھا, آپ مجھے پوری کہانی بتائیں کہ آپ کی بیٹی 20 اگست کو, مطلب 8 دن سے غائب ہے, گھر سے گم ہو گئی ہے. کہاں گم ہوئی ہے, کیا ہوا, کیسے نکلی وہ گھر سے؟ 20 تاریخ کو تقریباً میں ظہر نماز پڑھ کے آیا, گھر پہ بیٹھا تھا. ٹھیک ہے. تو میں بچی سے باتیں بھی کر رہا تھا. آخری بات جو میں نے بچی سے کی تو بچی نے میرے سے پوچھا, ابو اس عید پہ ہم گاؤں جائیں گے؟ تو میں نے بولا ہاں بیٹا گاؤں جائیں گے اور تیری میں قربانی کروں گا اس عید پہ. تو اس کے چہرے پہ میں نے دیکھا کہ وہ رونے جیسا چہرہ ہو گیا. اچھا, پھر میں نے اس کو سمجھایا, نہیں بیٹا تو میرا اولاد ہے, میں تیری قربانی کیوں کروں گا. لیکن آپ نے ایسا بولا کیوں؟ میں نے مطلب کیا اس بات کا مطلب میں نے ایسے مذاق میں اس کو مذاق کے طور پہ اس کو بول دیا. میں نے بولا ہاں اس عید پہ ہم گاؤں جائیں گے اور میں تمہاری قربانی کروں گا. ہاں میں تیری قربانی دوں گا. مذاق تھا, غصے میں کسی بات؟ نہیں, مذاق نہیں, غصہ نہیں. تو وہ رو پڑی. میں نے پھر اس کو سمجھایا, نہیں بیٹا میری بچی ہے, میں آپ کو کیوں قربان کروں گا, میں بکرا لاؤں گا, پھر ہم اس کی قربانی دیں گے. تو اس کے بعد میں نے بولا بیٹا میں ابھی تھوڑی دیر آرام کرتا ہوں کیونکہ رات کو میری شاید ڈیوٹی جائے یا کچھ, تو ادھر کوئی شور شرابہ نہیں کرنا, میں تھوڑی دیر آرام کرتا ہوں. تقریباً 3 بجے لائٹ آئی ہے اور 3:30 بجے تک میری بیوی نے مجھے بتایا کہ
बच्ची घर में नहीं है। रात को 3:30 बजे? दिन में। दिन में तो मैं एकदम उठा और भागा नीचे गली में मजदूर काम कर रहे थे। उनसे मैंने पूछा भाई इस तरह कोई आपने लड़की देखी है? उन्होंने बोला हाँ अंकल 10 मिनट हुए बच्ची आपके घर से निकली है, पहले इस तरफ गई थी, फिर वापस आके आपका दरवाज़ा बजाया, उसने दरवाज़ा नहीं खुलाया तो बराबर का दरवाज़ा बजाया उसने, वो नहीं खुलाया तो फिर बोला ऐसे आसमान की तरफ देख के बड़ा वो हंसी है और बोला अब मेरे को मार देंगे। इधर इसी गली में भागती गई है। अच्छा। हाँ, फिर मैं उसके पीछे उस गली में गया, दूसरी गली, फिर वहाँ जो कॉलोनी का गेट बना हुआ है वहाँ सिक्योरिटी वाले बैठते हैं, वहाँ से जाके मैंने मालूम किया। बराबर में रिक्शा स्टैंड है, टैक्सी स्टैंड है, उनसे पूछा लेकिन अभी तक कोई पता नहीं चला है। 10 मिनट में बच्ची गायब? बस 10 मिनट। 10 मिनट वहाँ पे लोगों ने देखा है, मतलब वो कहीं करीब ही होगी। तो मैं मतलब आप कितनी दूर तक गए? और एक सवाल पूछना चाहूंगी कि बच्ची क्या नॉर्मल है, उसका जहनी तवाजुन ठीक है या नहीं? असल में उसके ऊपर कुछ असरात हैं जो बैठे बैठे उसका दिमाग काम छोड़ जाता है। असरात? हाँ, वो जिन्नात का है या उसको कोई जहनी बीमारी है, क्या है। बहरहाल उसका हम इलाज करा रहे थे एक बाबा से, हमारे गांव का ही बाबा है, उससे इलाज करा रहे थे। उसने एक तावीज़ दिया था, बोला ये तावीज़ इसके गले से कभी भी नहीं निकालना, अगर ये तावीज़ निकालोगे तो ये बच्ची कुछ भी हो सकता है इसको। अच्छा। वो तावीज़ हमें घर से मिला है उसका। हाँ, तावीज़ वो नहीं है अभी उसके। हाँ उसके। अच्छा, यहाँ पे मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक लेती हूँ। ब्रेक के बाद मज़ीद इनसे बात करेंगे और उस बच्ची की पिक्चर भी हमारे पास है, वो भी दिखाएंगे। अगर वो बच्ची कभी किसी को कहीं भी नज़र आए तो हमारे नंबर्स जो स्क्रीन पे चल रहे हैं, आप प्लीज़ उस पर कॉल करके हमसे ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा। छोटा सा ब्रेक के बाद मैं पूछूंगी क्या कहानी है। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग शो। इस वक्त मेरे साथ है मौला बख्श और उनकी बेटी जो 20 साल की है हलीमा, 20 अगस्त को कराची में ही वो रह रहे हैं और वो गायब हो गई है, गुम हो गई है, नहीं मिल रही, कहाँ गई है कुछ नहीं पता। बस उसके वालिद ने उससे इतना मजाक किया कि कुर्बानी की ईद आने वाली, मैं तुम्हें कुर्बान करूँगा। उसके बाद वो रोई है, वो दुखी हुई है या वो डर गई है, कुछ नहीं पता। लेकिन इनका कहना है कि उस पर कुछ असरात भी हैं। तावीज़ इनको दिया गया था कि ये हर वक्त इसको बंधा रहना चाहिए, लेकिन वो तावीज़ भी अब घर पे है। वो तावीज़ किसने उतारा, कैसे उतरा, क्या हुआ, वो क्यों निकली है, वो डर गई है, कोई उसको लेके गया है, किसी ने उसको भेजा है, कुछ नहीं पता, कुछ भी हो सकता है। उसकी वालदा हमारे साथ मौजूद है कॉल पे, उनसे बात करते हैं। कज़बानो साहिबा हमारे साथ है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आप मुझे बताएं कि जब हलीमा जो घर से गायब हुई थी, आप उस वक्त घर में मौजूद थी? गांधी मांगी ना हलीमा देखो ये तो पेरी देखो ना। हाँ ये वाक्य समझिए वो और माँ उस माँ गली में वही गली में वही पूरा की ये वाक्य पेरी की वो तो देखो हम के पान संभाले पान बोले वठी आई सुनेंगे हिंगर देखो मुझे वाक्य जो मुझे खाई रहती उसे महीनों से वो खाई इसलिए माँ ईद करन वो जो वजह की वो मुझे खबर को नहीं या मुझे वाक्य थी है जो जी खबर कितना हो। अच्छा, वो उर्दू में शायद नहीं बोल पा रही तो वो सिंधी में बता रही है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर मिल जाएगी। हम बिल्कुल कोशिश करेंगे और बच्चे की तस्वीर भी जितना ज़्यादा हो सके प्लीज़ आप स्क्रीन पे चलाएं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको देखें। और किसी को भी वो कहीं मिल जाए तो प्लीज़ हमसे कांटेक्ट करें, या फिर मौला बख्श का भी शायद नंबर चल रहा है तो उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं आप। मतलब आप जी
फिर वो तावीज किसने उतारा, क्यों उतारा? हाँ उन्हें इंजर ने कहो ना मौलवी साहब तावी थोड़े से ज्यादा उन्हें तो आऊं पान माओ से माई बार बार मुझे जी जा कच्चा हुआ। किसने बाल काटे थे हलीमा के, क्या हुआ था? वो कोई पड़ोसन थी, उसने बाल काटे थे हलीमा बाल के? काटे थे। क्यों काटे थे, कब काटे थे? वो तकरीबन 4 साल पहले की बात कर रही है ये। चार शादी आ जाए तो क्यों काटे थे बाल? अच्छा उसमें क्या, अब देखिए हम लोग यहाँ पे बात करें, हम आपके दुख में बराबर के शरीक हैं। बात को जब तक समझेंगे नहीं, खुल के नहीं करेंगे, बच्ची का सवाल है, ठीक है? तो क्या उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था, बहुत ख़राब था, या नॉर्मल थी, या उसको आपका भी नाम याद नहीं होगा या याद होगा? अगर नहीं, उसको वैसे तो मेरा नाम भी याद है, वैसे नॉर्मल है, अपना भी नाम याद है? जी जी बिल्कुल सब कुछ। जब भी इसके ऊपर ये असरात होता है तो फिर उसको कोई पता नहीं होता है कि मेरा बाप कौन है, भाई कौन है, माँ कौन है, फिर उसको पता नहीं होता है। फिर ये असरात इसके ऊपर जो है 10 दिन भी चलता है, 5 दिन भी चलता है, 8 दिन भी चलता है। अगर वो असर उससे ख़त्म हो गया तो क्या वो घर ढूंढ के वापस आ सकती है? ये है कि घर ढूंढ नहीं सकती है कि किसी को वो बता देगी कि हम नेवल में रहते हैं, नेवल कॉलोनी में रहते हैं। हाँ ये बता सकती है। ठीक है, इतनी समझदार है। इतनी समझदार है। ठीक है, आप वैसे कहाँ रहते हैं, आपका एरिया, आप अपना थोड़ा सा एड्रेस हमें बता सकते हैं ताकि अगर कोई आपसे डायरेक्ट वहाँ पर आना चाहे तो आ जाए? ये है नेवल कॉलोनी। ठीक है। हारून बेरिया नेवल कॉलोनी हब रिवर रोड पे है। ठीक है। मार्च बोर्ड से आगे। वहाँ पे कहेंगे मौला बख्श का घर तो दिखा देंगे? जी हमारा घर है 8 नंबर गली में, सेक्टर 1 की 8 नंबर गली में 20 नंबर मकान है। 8 नंबर गली में? जी। ठीक है, 20 नंबर मकान है वहाँ पे। ठीक है, आपकी 2 बीवियां हैं, तो आपकी दूसरी बीवी भी हमारे साथ लाइन पे है, तो उनसे पूछते हैं घर पे कौन कौन मौजूद है। उनको उर्दू आती है? हाँ उनको आती है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी शमीम कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा शमीम, मुझे ये बताओ कि जब हलीमा घर से गुम हुई या घर से निकल गई तो घर पे कौन मौजूद था, क्या हुआ था? मैं अल्लाह को हाजुर नाजुर जान के सच कहती हूँ, जब हलीमा घर से निकली थी, मैं हलीमा छोटी मेरी बेटी हम तीनों खाना खा रहे थे। ठीक है। तो खाना खा रहे थे, जैसे उसका अबू नमाज पढ़कर बाहर से आया तो उसने कहा अबू कुल्फियाँ लेकर आओ। वो कुल्फियाँ लेकर आए, हम तीनों ने मिलकर कुल्फियाँ खाई। खा के मुन्ने, मेरा छोटा मुन्ना अभी 4 माह का हुआ है, तो मैंने उसको दिया। मैंने कहा अभी भाई को बिठाओ, तो मैं वॉशरूम से होकर आ रही हूँ। उसके अबू जो है वो अपने कमरे में सोने के लिए गया। जैसे वो सोया, लाइट आई, उसने दरवाजा बंद किया। मैं गई वॉशरूम से आकर मैंने गुड़िया से पूछा कि गुड़िया बेटी बाजी कहाँ है? तो उन्होंने कहा अम्मी बाजी ने मुझे 2 रुपए दिए हैं और बाजी कह रही है मैं बर्तन धोती हूँ। मैंने कहा बर्तन अंदर किचन में? मैंने देखा तो नहीं थी। मैं नीचे भाग कर गई, क्योंकि उसको पहले साय का असर हुआ था। इसी बात का हर टाइम मुझे डर लगता था। मैंने कहा हर टाइम मुझे यही डर होता था। मैं भाग के नीचे गई हूँ, मैंने आवाज दी, आकर अपने शोर को उठाया। मैंने कहा जल्दी उठो, बेटी घर से नहीं है। जैसे वो भी भागा, बाहर निकला इधर उधर, मुझे पता नहीं चला। मैं हर एक के घर में गई हूँ, मेरी बेटी आई है या बेटी, कोई बता ही नहीं रहा कि कहाँ है। पूरा माला ढूंढा, वो मेरा शोर तो पता नहीं कहाँ गया। मैं ढूंढते ढूंढते जब मेरे बच्चे मदरसे छोटे चले गए थे, वो आए तो मैं बाहर रोड पे ही रो रही थी। पूछ अच्छा, रहे थे जब वो घर से निकली और जब उसके साथ आप खाना खा रहे थे, मतलब 5-10 मिनट पहले, उसका क्या कंडीशन सही थी या उसपे कुछ असरात नजर आ रहे थे कि अब इसके साथ कुछ मसला होना शुरू हो गया है? हाँ जी, एक तो हॉस्पिटल में इतनी पता नहीं किसी की आवाज, वो जब घर से गई थी, हम खाना खा रहे थे, कोई बात कर रही थी मुझसे। अल्लाह पर इच्छा है। अच्छा, नॉर्मल थी वो? जब आपसे भी मिली थी वो सही थी, लेकिन आपको पता था उसकी कंडीशन ठीक नहीं है, मतलब बच्ची भी है, तो आपको लगता है कि आपके मजाक के बाद वो डर गई है या आपको लगता है उस पर असरात आ गए? उस पे मुझे जो उसके ऊपर असरात हो गया, जब उसने तावीज खोला है अपना, तो उसके बाद उसके ऊपर असरात। तावीज किसके सामने खोला था उसने? तावीज मेरे सामने तो नहीं, आपने वो घर पे देखा है तो आपको लगा कि तावीज उतार के? हाँ। अच्छा ठीक है, ये बच्ची बार बार आपको हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं और आज भी कोशिश होगी कि आज हम सारा दिन इस बच्ची की तस्वीर चलाते रहें। अगर ये बच्ची कहीं पे भी आपको नजर आए तो प्लीज आप हमसे कांटेक्ट करें या फिर मौला बख्श से आप जरूर कांटेक्ट कीजिएगा। उन्होंने अपने घर का एड्रेस भी बताया है, और दुआ कीजिएगा कि ये बच्ची मिल जाए। दुआओं में याद रखिएगा। इजाजत दें, जिंदगी रही, खुदा ने चाहा तो आपसे जरूर मुलाकात होगी। आपका बहुत शुक्रिया और हमारी दुआएं आपके साथ हैं, और प्लीज जितना हो सके आप हमारी मदद कीजिएगा। खुदा हाफिज।